ओके राइट। हम लोग बात कर रहे थे बेटा, तो लॉस ऑफ Sir, yesterday game, sir. laws of chemical combinations. Okay, तो उसमें हम लोग पढ़ लिए हैं. In that we have already discussed law. Okay, law of Sir, good morning. good morning. Conservation of mass. And number 2 is law of constant. Good morning, sir. Good morning, beta. Constant proportion. Law of multiple proportion. Number 4, law of reciprocal proportion. Yes, sir. Okay, and fifth one is Gay-Lussac's law. Good morning, sir. Good morning, Gay-Lussac's law. Okay, write it nicely. Yes, sir. Yes, Thank you, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, children. So, law of conservation of mass का मतलब समझ ही हो गए कि both side, okay, Masses will be equal. yeah, both side same masses, okay. This is the shortest form of law of conservation of mass. So, okay, next is about law of constant proportion. Means composition of a compound, okay, is same, always same. Law of multiple proportion, okay, ratio of masses
of element of element of an element is multiple ratio, is multiple. Okay. Reciprocal proportion means ratio by ratio is simple ratio. Okay, and Gay-Lussac's law. Okay, volumes are in simple ratio. Simple whole number ratio. Volumes is understood. Volume of gases. Yes, sir. Volume of gases are in simple ratio. Okay, children. So, law of conservation of mass. I will tell the first line. You have to complete it. Okay. Number 1. Law of conservation of mass. Both the side masses are same. Both the same masses are same. See what I have written. Only that much you have to speak. Okay. Both sides same masses. Sufficient. That is sufficient. Both sides. Okay. So Okay, let sir. me add some more participants because now we need. Okay. Okay, sir. Yeah. See. Okay. Everybody. Yes, sir. Okay, sir. See, I could. Come on. Law of conservation of mass. You have to complete the remaining line. Okay. Okay, sir. Law of conservation of mass. Both the sides Both sides same mass. Yeah, at a time. Okay, at a time. Keep time forward. Ekdam. Law of conservation of mass. Both sides same Same masses. Same mass. Yeah. Law of constant proportion. Composition of a Composition of compound a is same. Compound is same. Same. Always same. Okay. Always same. Always same. Law of multiple proportion. Ratio of mass of an Ratio of an element element is Ratio of masses of an element is in multiple ratio or is multiple ratio. Okay. Yes. Okay, Or sir. a simple ratio, simple whole number ratio. Whatever you can want, you can write it. Conditions are applied. Here we can say conditions are applied. We have written in short. Okay. Detail we have written Yes. earlier. So only the main words we are writing. Conditions are applied. Okay. Law of reciprocal proportion. ratio by ratio is simple Ratio ratio. is See, when you see that language, no, you will find it so difficult. But the main theme of that law is ratio by ratio is simple ratio. Then Gay-Lussac's law. volume of gases is in simple volume ratio. of gases is simple ratio. Everywhere simple ratio, simple ratio, simple ratio. Then it is so simple. Then why to worry? Everything is so simple. Okay. Yeah. Yes, When sir. everything is so simple, why we have to worry? Okay, right. What is the last one, sir? Gay-Lussac's law. Volumes are in simple ratio. Volumes are in simple ratio. Now, when you will solve the problem, you will understand. Okay. So, once again, children. Law of conservation of mass. Both Both sides sides same same mass. masses. Yeah, एकदम नारा लगाओ भाई, दिमाग में घुसे बात. Law of conservation of mass. Both Both sides same mass. Both sides same mass. Same mass. Like this, you can continue like this. Law of conservation of mass. Both sides same Both sides mass. same mass. Yeah, same mass.
Law of constant proportion. Composition of a Composition of a compound is always same. Yeah, Always same. yeah. Otherwise, you can write simply composition is same, like this. Yeah. Remaining we know na. Composition of what? A compound. Okay. Compound. Yeah. Law of multiple proportion. Ratio of mass of an element is multiple. Ratio of an Yeah, element is multiple. multiple. Yeah, multiple ratio, simple ratio. Anything you can write. It will not come in fraction. Actually, it will be in a multiple ratio. Law of reciprocal proportion. Ratio by ratio is simple ratio. Simple ratio. Now, ratio. because already I told you conditions are applied. So what is this ratio? What is this ratio? Yesterday we have discussed. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Gay-Lussac's law. Volumes are in gas simple is ratio. simple ratio. Ratio is simple ratio. Condition is applied that temperature, pressure, okay, and STP. yes, number of moles should be what? Constant, okay? Okay. Number of moles. Temperature and pressure at least be same for all these things. Measurement of the volumes at under same temperature and pressure. Because volume is affected by temperature and pressure. That's why whenever you consider the volumes, when you are comparing volumes of different gases, Yes, sir. then you have to consider the temperature and pressure. That temperature and pressure should be same because they affect the volume of the gas. Okay, sir. So, Okay, sir. so this is the some important point regarding for the law of chemical composition, law of chemical combinations. So from here only we will get Avogadro's law also. Avogadro's law. Avogadro's law. Okay. So Avogadro's law means volume is directly proportional to number of moles. Volume is directly proportional to number of moles of a gas. Okay, we are considering from gas only. It means as number of moles will increase, volume will also increase. Avogadro's law. Okay, sir. Yeah. Yes, sir. Condition is applied. Temperature and pressure will be constant for Constant. every condition. चलो एक बार लास्ट करो फिर उसके बाद हम लोग एंटर करते हैं क्वेश्चन में. सो आई होप ओके एवरीबॉडी इज देयर. हम जब ये वाला ब्लैक वाला खोलते हैं सब लोग ये कर देता है, क्या बोलते हैं, हाँ, फिर उसके बाद मैं जिसको करना चाहता हूँ अनम्यूट वो रह जाता है. ओके Sir, tomorrow's yesterday's game results, sir. Yeah, at 3 o'clock. At 3 o'clock. Okay. Okay, sir. आपने पार्टिसिपेट किया था? हाँ सर. अर्जिता दत्ता, अर्जिता अनम्यूट करो बेटा अपने आप को. Thank you, sir. Thank you, sir. हर्षित आ गया. हर्षित बेटा. हाँ सर. ओके राइट. चलो जिसका छूट जाए, जिसको मैंने अनम्यूट नहीं किया ना वो रेज कर देगा, मैं आगे बढ़ा अनम्यूट कर दूंगा. एक बार लास्ट फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. Both sides same mass. Same mass. Law of constant proportion. Composition of a compound Composition of a compound is always same. Always same. Law of multiple proportion. Ratio of mass of an element is multiple. Multiple ratio. Simple ratio. Okay. Okay. Law of reciprocal proportion. Ratio by ratio is simple ratio. Ratio by ratio is simple ratio. Gay-Lussac's law. Volumes are in simple ratio. Yeah. G is there. Volume of gases are in simple ratio. Okay.
Yes, sir. when they react with each other, anyhow. Okay, sir. So and from there only Avogadro's law also generating. So let us see. Okay, children. So now this is the law of chemical combinations. Okay, children. Note it is difficult to know the position of outermost electron. Sir, in the Avogadro's number, the N means the number of moles, no, sir? Yeah, number of moles. Okay. Number of moles of gas बढ़ते जाएगा, So वॉल्यूम भी बढ़ते बढ़ते जाएगा. जाएगा. अगर टेम्परेचर प्रेशर सब कांस्टेंट है तो. Yes, sir. Means the volume increases, the number of moles increases. यस, वॉल्यूम बढ़ा मतलब नंबर ऑफ मोल बढ़ा है, इसीलिए बढ़ा है. और मोल्स बढ़ा है मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा ही, अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तब. Yes, sir. Means at STP. हाँ, मतलब हाँ, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम को डिस्टर्ब कर देता है ना, Yes, sir. तो उनको कांस्टेंट रखना पड़ेगा. आपने जब फीवर की और कोल्ड की दवाई ली है तो आप दवाई लेते जाइए और ये मान के चलिए कि अभी जब तक दवाई ले रहे हैं तब तक आप कोल्ड ड्रिंक्स नहीं खाएंगे, उसको कांस्टेंट रखेंगे. Yes, sir. कोल्ड ड्रिंक हुआ, आइसक्रीम हुआ, समझ गए बात को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ, एक तरफ ठंडा का आप दवाई भी ले रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं और ऊपर से उस मेडिसिन को ही कोल्ड ड्रिंक के साथ पी रहे हैं, तब तो हो गया है ना. उसको कांस्टेंट रखना. डॉक्टर बोलेगा बेटा थोड़ा दिन तक रहने दे बेटा, कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम रहने दे, ये दवाई ले ले, ठीक हो जा, फिर खा लेना. समझ में आई बात? Yes, sir. तो ऐसा है. तो अब देखो हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. ठीक है बेटा. तो अब एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ, फटाफट बनाइए. चलो ये पेज नंबर, ठीक है, ये हम लोग के पेज 26 का है ये, और क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों. ओके, हम लोग के मटेरियल का ये in the formation of SO2 and SO3. तो इन द फॉर्मेशन ऑफ, ये सब छोटा छोटा जो मैं बोल रहा हूँ उसको पूरा लिख लीजिए. इन द फॉर्मेशन ऑफ SO2 and SO3. ओके, ठीक है. द रेशियो ऑफ ओके masses of oxygen 2:3. which combines with 10 kg of sulfur is option A 1:1, option B 3:2, option C 3:3 and option 4 3:4. Sir, Option three C, options, sir. Option C. तो The मैंने third option. आपको कल ही बता दिया था कि इतना टेंशन लेना नहीं है. बहुत लोग इसका लंबा कैलकुलेशंस करने लगेंगे, लेकिन आपको वैसा नहीं करना है. सीधा सा आपको फॉर्मूला देखना है. जब आप इसका सॉल्यूशन निकालने जाओगे SO2 लिखोगे, SO3 लिखोगे, किसी को बताना मत, ऐसे करके अध्याय रगड़ देना. समझ गए बात को?
Yes, sir. sir. ये 2 है और ये 3 है, समझ गए? तो 2:3, समझ में आई बात? तो Yes, अब sir. अब क्वेश्चन में क्या है, 3:2 भी दिया है, 2:3 भी दिया है, तो हम कैसे जाने किसका रेशो? हाँ, तो ऑक्सीजन, तो पहले SO2 है, SO2 पहले लिखा है SO3 है, तो कौन सा सही होगा? 2:3. 2:3 होगा I think सर, you got my नंबर answer. सी सर। ये सब डरना नहीं है। कितने लोग लग जाएंगे कैलकुलेट करने में, बाबा 10 kg ऑफ सल्फर, ये वो, परवाह नहीं है उसकी, परवाह नहीं है। कांस्टेंट वेट बोला है, तो जो वेट इसके लिए वही वेट इसके लिए, सीधा रेशो ये आ गया। देखो, यही तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसका। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का 3 आंसर है बेटा। आ गई बात समझ में बेटा? Yes, sir. Sir. Yes. कि याद हम लोग कल कर रहे थे ऐसा वाला काम? हाँ सर। Yes, अब sir. देखिए एकदम रेशो निकल गया ना इजी वे में। हाँ, कोई sir. डाउट होने से हाँ, पूछेगा, कोई भी डाउट Yes, होने sir. से पूछेगा बच्चों। Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, next question. Electrons in model. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11। ओके, देखो 14 ग्राम ऑफ एलिमेंट X combines with 16 gram of oxygen. 16 gram of oxygen. On basis of this, किसी का नॉइज आ रहा है बैकवर्ड में, है ना, हल्का सा जाने अनजाने में। ऑन बेसिस Yes, ऑफ दिस, which of the following is correct? किसी के बैकग्राउंड में एक नॉइज आ रहा है, देख लो थोड़ा, अपने आप को एक जन अनम्यूट करके देख लो। वो अगर वो वॉइस कम खत्म हो जाता है तो अपने आप को मतलब ना म्यूट कर लो, शायद तुम्हारे तरफ से आ रही है, अपने आप चेक किया करो। फॉलोइंग इज 14 gram of an element X combined with 16 gram of oxygen. Okay, on basis of this, which of the following is correct?
is correct. Option 1, नाइट्रिक X का, ऑक्साइड हाँ, X का एटॉमिक वेट, X का एटॉमिक वेट, X का एटॉमिक वेट 7 होना चाहिए, 7, और उसका ऑक्साइड फार्मूला, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है, तो ऑक्साइड फार्मूला इज XO। ये एक ऑप्शन है। एक दूसरा ऑप्शन है कि X का जो एटॉमिक वेट है वो 14 है, ऑक्साइड फार्मूला इज X2O3। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है कि X का एटॉमिक वेट 7 है और ऑक्साइड का फार्मूला जो है X2O है, X2O। और ऑप्शन 4, X का जो एटॉमिक वेट है वो 14 है और ऑक्साइड फार्मूला SO2 है। चलो बेटा इसको सॉल्व करो। 14 ग्राम ऑफ एलिमेंट, Sir, second option, sir. Second Second option. option. Second सेकंड option. ऑप्शन। सर थर्ड सर Third थर्ड option, होगा sir. सर, चलो थर्ड होगा कुछ लोग सेकंड में थर्ड भी है, ऑप्शन कुछ Third लोग option, थर्ड sir. में भी। ठीक है, ठीक है। तो देखो 14 ग्राम ऑफ एलिमेंट X कंबाइंड विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का हम लोग को, ये तो X है, इसका एटॉमिक वेट नहीं मालूम है, लेकिन ऑक्सीजन का हमें एटॉमिक वेट मालूम है। उसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 16। 16 Yes, sir. ओके, तो ठीक है। सवाल ये है कि ऑप्शन 2 और 3 ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, 16 से ज्यादा है। देखता हूं मैं, देखता हूं। 2 और 4 सॉरी 3 तो अगर मैं ऑक्सीजन का, ये देखो, ऑक्सीजन का अगर मैं वेट देखता हूं तो 16 ग्राम दिया हुआ है। तो अगर उसके एटम में चेक करता हूं तो उसका एटम आ जाएगा 1। ठीक है ना? तो एटम, ऑक्सीजन का जो एटम आएगा वो 1 आएगा बेटा, ऑक्सीजन का। ठीक है, समझ गए बेटा? यस सर। हेलो, Yes, sir. ऑक्सीजन का एटम जो आएगा वो 1 आएगा। Yes, sir. तो ऑक्सीजन का एटम 1 आएगा, तो 1 कहाँ पर है, पहले इसको चेक करेंगे, फिर काम बन जाएगा। तो सर 1 और 3 क्या ऑप्शन? चेक करते हैं, रुको। तो 1 है तो इसमें थोड़ा सा उम्मीद लग रहा है, इसमें थोड़ा उम्मीद, हाँ उम्मीद कम लग रहा है इसमें। सर इसमें भी थोड़ा सर उम्मीद फॉर्मूला तो X2 आना चाहिए सर, ऑप्शन 3 चेक तो करते होगा। हैं, चेक करते हैं। अच्छा, अब दूसरे का ये हुआ था ऑक्सीजन का। अब X का हमें वजन दिया हुआ है 14 जी सर। 14 दिया हुआ। अब हमें उसके एटॉमिक वेट यहाँ पर जैसे मान लेते 7 दिया हुआ, तो हम इसको एक बार 7 से डिवाइड करके देखते हैं कितना आ जा रहा है। 2। समझ रहे बात को? यस सर। तो Yes, अगर, हाँ, अगर हम उसके एटॉमिक वेट को 7 मानते हैं, अगर उसके एटॉमिक वेट को 7 मानते हैं, तो X का वैल्यू 2 आना चाहिए, मतलब फार्मूला आना चाहिए X2O आना चाहिए, X2O। मतलब पहले वाले में जो कंडीशन दिया है, तो इसका तो हमको मालूम है कितना एटम है, 1 है। और अगर X का एटॉमिक वेट 7 कंसीडर करोगे तो फार्मूला आना चाहिए X2O, जबकि वो दिया हुआ है XO। तो ये वाला जो चीज है, Yes, sir. ये करेक्ट वो होता हुआ गलत दिखाई हुआ। नहीं दे रहा, ये रॉन्ग गलत आ होगा। ठीक है। चलो यहाँ अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर हमको मालूम है कि ऑक्सीजन का चूंकि 16 ग्राम जमा है, तो उसका तो एक वैल्यू है, ये वाला तो फिक्स हो गया। और अगर आप उसका एटॉमिक वेट अगर X का 14 मानते हो, ये वाला चीज जहां पर हम 7 माने थे तो 2 आया था, ये बोल रहा 14 मानिए, तो 14/14 कितना हो जाएगा? 1। 1. तो ऐसी स्थिति में इसका अगर आप ये कंसीडर कर रहे हो, ये वाला सिचुएशन, तो आपका फॉर्मूला आना चाहिए था XO। समझ गए बात को? XO. लेकिन ये फॉर्मूला दिया हुआ है तो ये रॉन्ग है।
गलत। अगर 7 मानते हो तो 7 मान के हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो हम लोग का आना चाहिए था यहाँ पर X2O, जो यहाँ पर दिखा रहा है क्लियर आ गया करके। समझ में आई बात? हेलो हेलो। Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. ये करेक्ट है। लेकिन अगर जब आप 14 मानते हो तो 14 में फॉर्मूला XO आना चाहिए, फिर XO2 लिखा है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, ऊपर वाला। उम्मीद करते हैं इस तरह से आपको क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। समझ में आ गई बात बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ कुछ नहीं था, X और O था बस। और हमने कहा हर फार्मूला में ऊपर में एक बॉक्स होता है, नीचे एक बॉक्स होता है, इधर एक बॉक्स होता है। ठीक है, Yes, sir. हाँ सर। वही सर, सब चीज हाँ, को सर। मैनेज करना पड़ता है। तो वजन और नंबर ऑफ मोल्स आपको बोल चुके हैं, वेट बाय मोलर वेट। ठीक है, यस सर। Okay, Yes, sir. sir. तो जब वेट ऊपर दिया हुआ क्वेश्चन में, वेट दिया हुआ है, इसका एटॉमिक वेट हमें मालूम था, वही मोलर वेट होता है। और यहाँ भी वो दिया हुआ एटॉमिक वेट, तो जिसमें sir. फिट हो रहा था वो हमें काम करना था। ठीक है, तो इस तरह Yes, से sir. थोड़ा ध्यान दे दीजिए। Yes, sir. Thank you, sir. या ओके बेटा, सो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, कोई प्रॉब्लम होने से हमसे पूछेगा। और आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम टू एंटर एट 3 o'clock class also. I couldn't understand the simple reason that why you are okay. Some people, not everybody, some people are escaping. Okay, 3 o'clock, that is also a very important class, children. Okay, so next question is question number 10 हो गया, 11 हो गया, this is the 12th. Law of multiple proportion. Law of multiple proportion. Law of multiple proportion is illustrated by one of the following pairs. By one of the, जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ना, उससे इजी तो आंसर है। फॉलोइंग पेयर्स। अब आपको मालूम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मैंने कंडीशन दे दिया था आपको। ठीक है, कंडीशन एलिमेंट्स मल्टीपल में क्या होना चाहिए था, एलिमेंट क्या होना चाहिए, 2 कंपाउंड तो होने चाहिए थे, लेकिन उनके एलिमेंट क्या होने चाहिए थे? बोलो बेटा, एलिमेंट क्या होने चाहिए थे? एलिमेंट कांस्टेंट रहना चाहिए था। हाँ, उनका जो एलिमेंट्स है बेटा वो सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन काम करेगा। अगर आप एलिमेंट को ही सेम नहीं रखोगे तब आप उस रूल के बाहर हो जाओगे। That was the first condition of multiple proportion. N2O and NO. अब आप बताइए मल्टीपल प्रोपोर्शन में Sir, कहा number गया? 4. सर नंबर 4 होगा आप सर। देख लीजिए, आप नंबर 4। इमीडिएटली ले कंपाउंड नहीं सेम है, काटो, ले एलिमेंट सेम नहीं है, इसमें सोडियम तो सही है। अरे हाँ, Na2S है, Na2S है ना, सर ये भी तो सेम है। और Na कौन सा गया ये मैटर, थर्ड ऑप्शन ना, Na2S था, दूसरा में Na2O था। ठीक है बेटा, हेलो। Okay, Yes, sir. sir. Okay. हाँ, हाँ, sir. हाँ, तो सर, नंबर देखो 4 ही दोनों कंपाउंड में नंबर एलिमेंट 4 होगा। Sir, number तो 4. ये नहीं होगा, Fourth option होगा। ये भी नहीं होगा। एकदम स्माइलिंग फेस के साथ, समझ में आ गया बात? Yes, sir. कर लोगे? सर एक बार फिर से समझा दीजिए ना। अब इसमें समझाना क्या है बेटा, इसमें अब क्या समझाना है बताओ, मैं क्या सर समझाऊं? कांस्टेंट एलिमेंट से अब सेम मैं तुम्हें एलिमेंट। क्या समझाऊं बताओ? ये देखो, फिर भी तुम बोल रहे हो तो मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो, हम लोग समझाते भी रहेंगे और बोलते भी रहेंगे, क्या समझाऊं बताओ, क्या समझाऊं, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, समझा के ही रहते हैं हम लोग। तो अब देखो, ये बेटा Na2O है, बोलो हाँ। Yes, sir.
जिसको समझना है वो भी हाँ बोलो, उसी को जल्दी ज्यादा जरूरी है हाँ बोलना। हाँ सर। हाँ सर। ये जो NO लिखा हुआ बेटा, तो मैंने कल ही बताया था टेक्नोलॉजी, जब यहाँ मालूम है कि Na2 है तो इसको भी लिख लो ना N2O2। दिक्कत क्या है? हेलो, मल्टीप्लाई कर लिया ना मैंने 2 से। तो अब देखो ये है Na2O और ये सॉरी Na कहाँ, N2O और ये है N2O2। समझ में आई बात? यस सर। अब मैंने इसको कांस्टेंट रख दिया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1:2 आया कि नहीं आया? हाँ सर आया। तब फिर इसमें समझने वाला क्या बात था? अब समझ गए? हाँ सर। ठीक है, पक्का ना लॉक कर दें? हाँ सर। ओके। तो आपने क्या मिस्टेक की थी? आपने इसको ये इसमें कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है? हाँ सर। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो चीज नहीं समझ में आए प्लीज पूछना भाई, ऐसे ही हम लोग बोलते हैं लेकिन फिर समझा के ही रहते हैं। और आपको अपनी गलती समझ में आनी चाहिए कि मैंने क्या नहीं किया था, क्या नहीं सोचा था बोल के वो क्वेश्चन में पूछना पड़ा। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके, ये महसूस होना चाहिए, मतलब खाली आर्टिफिशियल स्टडी नहीं होना चाहिए बस हाँ मैंने पूछ लिया सर ने बता दिया बस, ऐसा नहीं करो। जब आपने पूछा है तो पूरे धैर्य के साथ समझने की कोशिश करो और मैं आपको पूरा समझाऊंगा और समझ में आने से ही हाँ बोलना है, नहीं तो ना बोलते रहना है, क्या दिक्कत है? ठीक है? तो मैं उसका कोई ना कोई उपाय निकालूंगा। हाँ, जैसे पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई दिया, ठीक हो जाएंगे तभी तो बोलेंगे ठीक हो गए, नहीं हो गए तो फिर जाके बोलना पड़ेगा नहीं हुआ सर, ठीक नहीं हुआ सर, बुखार वैसे ही है सर, हाँ सर वैसे ही है सर, फिर दवाई दिया, फिर वैसे ही है सर, वैसे ही है सर। तो आखिर उपाय निकालना पड़ेगा ना, कि तब ना समझ में आएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है। कोरोना हुई। हाँ, तो कहने का मतलब यही सब है। Srinjay? Okay, right. Okay, next question is question number 13. Okay. देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो एक CuO नाम का एक कंपाउंड है बेटा, percentage of copper and oxygen in sample of Cu obtained from different methods were found to be same. जो Cu का जो कंपोजिशन था क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कंपोजिशन ओके इज सेम। ओके, क्वेश्चन में बोला है कि CuO का कंपोजिशन सेम, इवन दो स्पेलिंग बोलो तो बेटा, इवन दो का THOUGH। चलो, इवन दो CuO is collected from different sources, Cu एक कंपाउंड था, ठीक है, उसका कंपोजिशन ऑलवेज सेम आ रहा था, कंपोजिशन दोनों साइड से, मतलब क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी समझ में आया? यस सर। हाँ, जितना भी सैंपल आप डिफरेंट सोर्स से लेके आ रहे थे, सब में कॉपर था और ऑक्सीजन था और उसका जो वेट का कंपोजिशन था वो भी सेम था। तो ऐसे रूल को आप क्या बोलोगे? लॉ ऑफ डिफिनेट प्रोपोर्शन, कंजर्वेशन ऑफ मास बोले? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं बोलेंगे। तो बताइए, अब आप देखिए क्वेश्चन का आंसर आपको आ जा रहा है और ऑप्शन बाद में लिखा जा रहा है मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये भी नहीं होगा। नहीं सर। तीसरा है रेसिप्रोकल ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। चौथा वाला ऑप्शन होगा। तब चौथा वाला ऑप्शन होना ही होना है, उसका नाम है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट। अब आ गई बात समझ में? हाँ सर। इस तरह से क्या काम हम लोग को करना है।
तो इसको जल्दी जल्दी नोट डाउन करते जाइए, हर क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाइए। और जैसे कि कल हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने सारे लेक्चर्स को एक बार फिर से देखकर तब से सबका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एक नोट्स जैसा बनाया। जो जो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते थे लोगों ने किया है और मेरे को सेंड भी किया है, और उसका वेरिफिकेशन चल रहा है अभी। लगभग सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कुछ बच्चों ने नहीं किया अभी तक, तो उनको बोलूंगा एक्टिवली, क्योंकि ये एक तो बहाना होता है, एक्चुअली आपको हमें पढ़ाना होता है। समझ गए बात को? तो नोट्स लिखने वाला कंपटीशन। हाँ, तो ये जस्ट एक तरीका होता है बच्चों, जस्ट एक बहाना होता है, और उसके पीछे क्या रीजन क्या होता है कि हमें आपको अच्छी तरीके से पढ़ाना होता है। ओके, तो ये जो लेक्चर आप देख रहे हो इस पे भी आएगा, 2-3 रोज के बाद फिर आएगा कि आप इन लेक्चर्स को बढ़िया से देखिए और वहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन आपने गैदर किया उसको नोट डाउन करिए और अच्छे से उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेजिए। मेरे को जो नोट्स अच्छा लगेगा कि उस बच्चे ने मेहनत की है बहुत, जो मैंने समझाया उसके और भी ज्यादा समझने की कोशिश की है, कहीं और दूसरे से नहीं, दूसरे मटेरियल से कुछ उतारना नहीं है, यहीं से देख करके जो मैं बोल रहा हूँ और जो लिख रहा हूँ उसको सबको ध्यान में रखकर आपको अच्छी तरीके से नोट्स बनाने हैं और मेरे को भेजने हैं। ठीक है, और फिर मैं एनालिसिस करके विनर घोषित करूंगा कि इस कंपटीशन का कौन विनर था। इस चैप्टर का नोट? यस बेटा। ओके ओके ओके, सर नोट्स तो हम भी बना है। हाँ तो बना के आपने स्क्रीनशॉट क्यों नहीं भेजा? कल 11 बजे तक का टाइम था। तो हमको पता ही नहीं आपका। पता कैसे नहीं है? मैंने ग्रुप में डाल दिया था। हाँ सर, ग्रुप पे डाल दिए थे। अब तब सर सर मेरा एक फोटो रह गया सर, मतलब रिसेंट मैंने आपको सेंड किया था लेकिन नेट की वजह से सेंड नहीं हुआ। कितना 11 बजे के बाद सेंड हुआ है क्या? नहीं सर, मैंने आपको मैंने अगर 7 बजे सेंड कर दिया था। अगर 11 बजे से 8 बजे सर, 8 बजे सेंड किया था। ओ आराम से चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कंसीडर हो रहा है। 11 बजे तक का टाइम था। देखिए मैं आपके लिए कितनी देर तक मेहनत करता हूँ, सबका मैंने एक एक पढ़ा है, जैसे कॉपी जांचते हैं ना, एक एक नोटबुक को चेक किया मैंने कि किसने क्या लिखा है नहीं लिखा है। तो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। और आप सबों ने सब जो स्कूल की फीस थी वो जमा कर दी है बेटा? हाँ सर। अगर जमा कर दिए तो उसका जो रेसिप्ट है ना बेटा, वो मेरे को इस नंबर पे भेज दो। जो अच्छा फीस देने वाला भी स्टूडेंट होगा उसको भी विनर घोषित किया जाएगा। एकदम फुल फ्लेज में देखो ये नंबर पे, तो उसका भी मैं एक ये निकालूंगा 837414 सब तरफ का काम चलते रहना चाहिए। ओके, तो मेरे को भेज दोगे जो हाँ ऑनलाइन पेमेंट का उसका स्क्रीनशॉट लेके जो भी किया है आप मेरे को भेज दीजिए। उसको उस सब स्लिप को मैं फिर यहाँ पर निकालूंगा, फिर उससे फिर एक विनर निकालूंगा, वो लक्की ड्रॉ बोलते हैं उसको। तो एक विनर एक मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? सर किसी ने अच्छी तरीके से सेंड किया है, इसके बेसिस क्या बेटा? सर जो अच्छी तरीके से सेंड किया है उसके बेसिस में उसको रिवार्ड मिलेगा। हाँ मतलब जिसका फीस वगैरह सब सही है उसका एक विनिंग अलग है, पढ़ाई लिखाई का विनिंग अलग है, बिहेवियर का भी विनिंग आएगा, अटेंडेंस का भी आएगा विनिंग। तो बहुत सारे मेरे पास में है। जैसे होता है ना कंपटीशन, तो एक प्राइज के साथ साथ बहुत सारा प्राइजेस साइमल्टेनियसली भी चलते रहता है। बेस्ट मूवी, बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट सीन, बेस्ट ये, बेस्ट डायलॉग, ऐसे तो सब चीज में आगे रहना। उसमें फीस फैक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है ना? तो इसमें भी आप लोग, तो मेरे को मालूम होना चाहिए कि सबका फीस भी एकदम साइमल्टेनियसली अलर्ट जा रहा है करके। तो चलो नेक्स्ट हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंपल ऑफ योर, लिख लो बेटा क्वेश्चन नंबर 14। सर 53 है सर।
53 है, किस चीज का बेटा? टाइम। अच्छा, अरे इस क्वेश्चन को जारी रखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक लेते एक छोटा सा ब्रेक। ओके, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए। थैंक यू सर। सर 10 बजे से हम ज्वाइन कर सकते हैं सर? हाँ, क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं। ठीक है सर सर। फिजिक्स में सिर्फ बैठे ही रहते हैं क्लास सर। चल रहा है। सर फिजिक्स क्लास में सिर्फ बैठे ही रहते हैं, वो एक पेपर्स दिखाते रहते हैं, हम लोग बैठे रहते हैं बस। हाँ सर, मजा नहीं आता। मजा नहीं आप आता सर। आप अगर वहां पर नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो आप मेरे पास ज्वाइन कर लीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हेलो, ठीक है ठीक सर। है सर। ठीक है बेटा, चलो चलो चलो, ठीक है सर। ओके सर। ठीक है बेटा, ठीक, बाय 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 सर। बाय बेटा, बाय।